Hello, students. We are going to begin with the first chapter, and the title is The Last Lesson by Alphonse Daudet. About the author Alphonse Daudet, 1840 1897, was a French novelist and short story writer. The Last Lesson is set in the days of the Franco Prussian War that happened between 1870 and 71, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. Prussia then that means in the past, in history, okay? That means Prussia now does not exist. So, Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. मतलब पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, पोलैंड और जर्मनी को मिला के प्रशिया बनी थी. In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. Means both the districts have come into under the control of Prussian hands. That means they have been conquered. Okay. Read the story to find out what effect this had on life at school. Okay, अल्साज और लॉरेन के स्कूल्स में वहाँ की लाइफ में क्या चेंज आया इसकी वजह से, इस मतलब वॉर में फ्रांस के डिफीटेड होने की वजह से, और ये दोनों जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये प्रशिया के हाथ में जब आ जाते हैं तब वहाँ की स्कूल्स में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वहाँ की लाइफ में. लेट्स सी. Notice these expressions in the text. Infer, that means deduce. Deduce. Their meaning from the context. मतलब ये कि I can explain you right now, but it will be more useful when you will try to learn the meaning of these expressions from the context. Means from the situations. When you read this chapter, you will come to know what is the situation, and then you will just be able to use the expression properly. But I'm just giving you the general information or general meaning of these expressions. In great dread of means fearful of something, okay, or you can say fearful in anticipation of something. कुछ मतलब पहले से ही आपने सोच लिया और आपको डर लगे तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो. Then counted on, that means relied on, depended upon, okay. Thumbed at the edges. Now this expression is used for a book. कोई भी बुक हो जिसको आपने बार बार यूज़ किया हो, तो you can say this book is thumbed at the edges. That means this book is worn or soiled. Edges, I mean soiled. Its edges are worn or soiled caused by frequent handling. कोई भी बुक होती है अगर वो पुरानी हो जाती है तो आप उसकी एजेस देखना, वो थोड़ी सॉइल्ड लगती है, मतलब डार्क होने लगती है धीरे धीरे. क्यों? क्योंकि आपने उसको यूज़ किया है. और कोई नई बुक लेते हो तो उसकी एजेस देखना, वो एकदम न्यू होती है, क्लीन होती है. ठीक है, तो दैट इज़ वॉट थम्ड एट द एजेस. इससे क्या मालूम पड़ता है कि वो बुक बार बार पढ़ी गई है, बहुत बार पढ़ी गई है और पुरानी भी हो गई है. ओके. In unison. Unison means simultaneously, at the same time. Okay. And इसमें क्यों यूज़ किया है वो आपको मैं बाद में बताऊंगा. Okay. A great bustle. Bustle means here commotion. लॉट ऑफ मूवमेंट. कहीं जैसे किसी हॉल में या अपने ही स्कूल में अगर आप स्टार्टिंग में मॉर्निंग में जाते हो तो प्रेयर के पहले सब इधर उधर बात कर रहे होते हैं, इधर उधर जा रहे होते हैं, तो उसकी वजह से बहुत कमोशन होता है. बसल, आवाज़ें सुनाई देती हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट इज रीप्रोच आवर सेल्व्स विथ. रीप्रोच मीन्स ब्लेम, ओके, एंड आवर सेल्व्स मीन्स टू ब्लेम आवर सेल्व्स और टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल.
और डिसअपॉइंटमेंट. ओके, उसको रिप्रोच करना बोलते हैं, टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल और डिसअपॉइंटमेंट. नाउ यू सी, let's begin with the story now. I means the narrator, and means I is used for Franz. You'll come to know that who's the narrator. Franz is the narrator, and Franz is not a man or a young man. Franz is a little child, okay, who studies in a school. So I started for school very late that morning and was in great dread of being scolded, या तो of scolding. Was in great dread of a scolding. He was in great dread of, he was fearful of something, or he was fearful in anticipation of something, in anticipation of scolding. मतलब वो पहले से ही डर गया था कि उसको डांट पड़ने वाली है. क्यों ऐसा, तो यू विल come to know later, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. Okay, M. Hamel ने पहले ही बोल दिया था कि भाई नेक्स्ट डे मैं आपको क्वेश्चन करूँगा पार्टिसिपल्स पे. एम हैमल कौन है, तो फ्रांस के टीचर हैं, एंड एम हैमल को स्कूल में पढ़ाते 40 साल हो चुके हैं. सो ही इज़ वेरी ओल्ड ऑल्सो एंड वेरी एक्सपीरियंस्ड. तो 40 साल से जो इंसान पढ़ा रहा है, या फ्रांस को क्या, फ्रांस के फादर को भी उस टीचर ने पढ़ाया होगा. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. फ्रांस को कुछ आता ही नहीं था, तो इसलिए उसको स्कोल्डिंग का डर था. अफ्रेड, ही वॉज अफ्रेड ऑफ स्कोल्डिंग. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. मतलब बाहर जाके घूमूं और स्कूल जाओ ही ना. इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट. द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स and in the open field back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting means attractive, than the rule for participles. Okay, now he was fearful in anticipation of a scolding कि मुझे डांट पड़ेगी, तो मैं स्कूल क्यों जाऊँ. Let me spend my whole day out of doors. क्योंकि आज तो क्या है, आज का दिन भी बहुत वार्म और ब्राइट है. एंड द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एजेस ऑफ द वुड्स, एंड प्रशियन सोल्जर्स भी ड्रिलिंग करते हुए उसको दिखाई दे रहे थे सॉ मिल के पीछे वाले फील्ड में. तो ये सब देखकर उसको मतलब और ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहा था, जबकि पार्टिसिपल के रूल पढ़ना उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था. तो ये सारी चीज़ें उसको ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही थी, अट्रैक्टिव, ये जो भी आज के दिन हो रहा है. बट आई हैड द स्ट्रेंथ to resist. Resist means to stay away, दूर रहना. किससे, all the temptation, जितनी भी टेम्पटेशन उसको हो रही थी मन में, ठीक है, उन सब से वो stay away हो सकता था उसने, और उसके पास उतनी स्ट्रेंथ थी, ताकत थी, तो वो उसने ये टेम्पटेशंस को दूर किया, रेजिस्ट किया. एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और फिर स्कूल की तरफ निकल गया. इतना तो समझदार था. When I passed the town hall, अब रास्ते में क्या है, टाउन हॉल से पास होकर जा रहा है ये. There was a crowd in front of the bulletin board. बुलेटिन का मतलब क्या होता है, न्यूज़. ओके, तो ये एक नोटिस बोर्ड ही है, बट दिस नोटिस बोर्ड इज़ यूज फॉर पुटिंग अप द लेटेस्ट न्यूज़ एंड कम्युनिकेशन. पहले के ज़माने में टीवी तो था नहीं, और ये तो बात कब की हो रही है, तो 1870 और 71 की बात हो रही है. तब तो टीवी ऑब्वियसली, रेडियो भी नहीं था. तो न्यूज़ या कोई भी ऐसा लेटेस्ट कोई कम्युनिकेशन करना हो गवर्नमेंट को अपने पब्लिक से, तो उन्हें बुलेटिन बोर्ड पर ये न्यूज़ रखना पड़ता था. ओके, तो देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. For the last 2 years, all our bad news had come from there. Where? From bulletin board. जितने भी बैड न्यूज़ आ रहे थे सब बुलेटिन बोर्ड से आ रहे थे, इसलिए लोग वहाँ जाकर पढ़ते थे.
द लॉस्ट बैटल्स, जो भी बैड न्यूज़ आए वो कौन कौन से थे? द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, यहाँ पे ड्राफ्ट का मतलब है ना ऑर्डर, ठीक है, जो भी प्लानिंग होती है गवर्नमेंट की वो, ठीक है। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, वो सब बुलेटिन बोर्ड पे आता था। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, द नरेटर सेज, मीन्स फ्रांस सेज टू हिमसेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, मतलब वो चलते जा रहा है, तेज़ी से चलते जा रहा है, और उसने सोचा व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या हुआ होगा, मतलब अब क्या बुलेटिन बोर्ड पे लिखा होगा। बट ये सोचते जा रहा है, रुक नहीं रहा है वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसको स्कूल जाना है, ऑलरेडी लेट हो गया है। देन एज आई हरीड बाय मीन्स एज आई वॉकड फास्ट, ओके, एंड पास्ट बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैकस्मिथ वॉकटर, अब एक ब्लैकस्मिथ होता है जो वहाँ पे भीड़ भाड़ में ही खड़ा होता है, उसका नाम होता है वॉकटर, वो वॉज देयर, वो भी वहाँ पे था भीड़ में, विद इज़ अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब होता है ट्रेनी, ओके, मतलब ट्रेनिंग लेते हैं, जब आप ट्रेनिंग लेते हैं कहीं पे तो आप एक अप्रेंटिस कहलाते हैं, और अप्रेंटिस सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं लेता है, उसको उसके बदले में कुछ सैलरी मिल जाती है, ठीक है। तो एक अप्रेंटिस भी खड़ा था उसका वॉकटर के साथ, रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, और बुलेटिन रीड कर रहा था ये, ठीक है, और एंड कॉल्ड आफ्टर मी, एंड क्या बोला उसके पीछे, जो दौड़ वो चलते चलते जा रहा था ना तेज़ी से, तो पीछे से क्या बोला, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। डोंट गो सो फास्ट बब, बब मीन्स योर बॉय। अब हर कंट्री में बच्चे को, बॉय को किस तरह से बोलना हो, अलग अलग सबकी उसके लिए वर्ड्स हैं, ठीक है। तो बोला डोंट गो सो फास्ट बॉय, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। इन प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स अर्ली इनफ, जल्दी पहुंच जाओगे, इतनी जल्दीबाजी मत करो। जबकि फ्रांस को तो पता ही था कि आई एम ऑलरेडी लेट, और इसने क्या बोला, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, दैट मीन्स अर्ली इनफ, पहुंच जाओगे तुम जल्दी, डोंट वरी, डोंट गो सो फास्ट। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, ऑब्वियसली किसी को भी लगेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं लेट हो गया हूँ, और ये बोल रहा है कि तुम जल्दी ही पहुँच जाओगे, डोंट वरी, टाइम बहुत है, तो ऑब्वियसली उसको लगेगा कि ही इज़ मेकिंग फन ऑफ मी। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। एम हैमल्स लिटिल गार्डन, ये तो स्कूल जा रहा था ना, तो लेट मी टेल यू कि स्कूल में ही वो गार्डन होता है, ठीक है। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, द टीचर्स वर गिवन अ रेजिडेंस इन द स्कूल, स्कूल के कैंपस में ही उनको रेजिडेंस मिल जाता था, और वहाँ पर उनके लिए गार्डन या जो भी कुछ हो, तो यहाँ पर हैम हैमल ने अपना गार्डन बनाया था स्कूल में ही, ओके। तो वो पहले गार्डन पहुँचता है, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब क्या, पैंटिंग, पैंटिंग मतलब हाँफते हुए, गैस्पिंग फॉर एयर। अब दौड़ते दौड़ते आया तो क्या करेगा, एक जगह रुकेगा तो हाँफेगा ही, तो हाँफते हाँफते वहाँ पहुँच गया। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन, अब ये यूजुअली बता रहा है, आज की बात नहीं बता रहा है, यूजुअली रोज़ कैसा होता है, देयर वॉज अ ग्रेट बसल, जब भी स्कूल शुरू होती है तो देयर वॉज अ ग्रेट बसल, बसल फिर से आया, बसल मीन्स वॉट, कमोशन, आवाज़, ठीक है। तो देयर वॉज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट तक वो आवाज़ सुनाई देती थी स्कूल की, और वो आवाज़ें क्या क्या होती थी, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क्स। अभी तो हमें बेंचेस जो है उसमें ऐसा ओपन क्लोज़ करने का कोई सिस्टम नहीं है, बट पहले की डेस्क्स होती थी जिसमें बच्चे ऊपर से ओपन करके अंदर बुक्स रख देते थे, तो बहुत पुरानी ऐसी डेस्क्स हुआ करती थी। तो क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन मीन्स साइमल्टेनियसली, सब लेसन रिपीट करते हैं ना, उसकी भी आवाज़ आती है स्कूल में से बाहर की तरफ, वेरी लाउड, बहुत ज़ोर से रिपीट करते हैं, विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, क्यों ज़ोर ज़ोर से एक साथ रिपीट करते हैं, ओके, कि हमें समझ में आए, और अपने दोनों हाथ दोनों कानों पर अपने कवर कर लेते हैं। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और क्या किसकी आवाज़ आती है, जो टीचर है उनके पास रूलर होता है, टीचर मतलब एम हैमल, वो टेबल पे वो रूलर रैप करते हुए मतलब करते रहते थे, और उसकी आवाज़ आती थी। रैप करना मतलब स्ट्राइक करना,
किस पर? टेबल पर. बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल. आज तो क्या था, ये तो रोज़ की बात बताई ये पूरी, लेकिन आज इट वॉज ऑल सो स्टिल, आज तो बहुत ज़्यादा शांति है. क्या बात है. आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन. ये तो क्या करता था पहले, ही हैड काउंटेड. काउंटेड मतलब डिपेंडेड ऑन द कमोशन, वो जो शोरगुल होता था ना, ठीक है, शोरगुल, कमोशन, कन्फ्यूजन जो भी बना रहता था, उस पर ये डिपेंडेंट रहता था कि सब शोरगुल में लगे हैं, आवाज़ करने में लगे हैं, तो चुपके से क्या क्लास में घुस जाता था और डेस्क पे जाकर अपने डेस्क पे बैठ जाता था. ठीक है, तो वही बात बोला है, आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, कि किसी को मैं दिखूँ ना. विदाउट बीइंग सीन मीन्स विदाउट बीइंग नोटिसेबल. बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. उस दिन तो क्या था, हर चीज़ इतनी शांत थी जैसे संडे मॉर्निंग हो. संडे मॉर्निंग इसलिए बोला है बिकॉज संडे मॉर्निंग में लोग चर्च जाते हैं और फादर के सरमन्स, यानी जो भी वो फादर बोलते हैं, सब ध्यान से सुनते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती. तो आज स्कूल में कुछ ऐसा ही लग रहा है. ओके. थ्रू द विंडो, अभी क्लास में एंटर नहीं करता है, थ्रू द विंडो, विंडो में से देखता है. आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, पहले से अपने प्लेसेस पे बैठे हुए. एंड एम हैमल को भी देखा. एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म. ओहो, वो पहले से वहाँ पर जहाँ पे मतलब उनको होना चाहिए वो वहीं पर है. उनका आयरन रूलर भी है. टेरेबल, बहुत डर लगता है उसको. ठीक है. आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी. अब क्या करता है, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो दरवाज़ा खोला और सबके सामने आना पड़ा. यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज. अब ये नरेटर क्या बोलता है कि यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड. ब्लश्ड मीन्स वॉट, व्हेन योर फेस टर्न्स रेड ड्यू टू शेम. थोड़ा तो मुझे शर्म आएगी ना, थोड़ा तो नरेटर को शर्म आएगी जब सबके सामने वो आएगा लेट. तो आप इमेजिन कर सकते हैं. और फ्राइटेंड, डरा हुआ भी था, क्योंकि उसको सबको बोला गया था कि भाई पार्टिसिपल्स के रूल्स आप पढ़ के आना, जो इसको बिल्कुल भी नहीं पता था, एक वर्ड भी नहीं जानता था उसके बारे में. बट नथिंग हैपेंड, पर कुछ नहीं हुआ. उसने क्या सोचा था कि मुझे डांट पड़ेगी, बट नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ. एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू. बहुत प्यार से उसको बोल दिया कि जाओ बैठ जाओ, हम तो बस शुरू ही कर रहे थे तुम्हारे बिना. अच्छा वो आ गए. आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क. नॉट टिल देन when I had got a little over my fright. देखिए got over, दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, overcame. overcame, ठीक है. मतलब इसके अंदर फ्राइट था, डर था इसके मन के अंदर, पर थोड़ा a little ये ओवरकम कर जाता है फ्राइट को, मतलब थोड़ा डर इसका भाग जाता है, बस थोड़ा डर इसका भागा ही था. Did I see that our teacher had put on his beautiful green coat. तभी क्या देखता है कि इसके टीचर ने तो बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना है. हिज फ्रिल्ड, फ्रिल्ड क्या, FRILLED, फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप. इन्होंने फ्रिल्ड शर्ट पहना है, ग्रीन कोट ब्यूटीफुल पहना है, और ये लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहना है. ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सारे एम्ब्रॉयडर्ड थे. मतलब आज इसको कुछ अलग ही लग रहा है कि इन्होंने शर्ट फ्रिल्ड पहना है. फ्रिल्ड का मतलब क्या होता है, अगर आप शर्ट को अगर आप फ्रिल्ड बोलते हो, इसका मतलब शर्ट के ऊपर क्या ऑर्नामेंटल एक एजेस लगा दी जाती है. मतलब पहले के ज़माने में लोग और मतलब शर्ट को काफ़ी डिज़ाइनफुल बनाकर पहनते थे और वो ओकेजन्स पे पहनते थे. तो बोले क्या बात है, आज तो भाई बहुत ही अच्छा पहना इन्होंने. दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज. ऐसे कपड़े तो वो कभी पहनते ही नहीं थे, एक्सेप्ट सिर्फ कब पहनते थे, इंस्पेक्शन या प्राइज डेज को ही पहनते थे. ठीक है, ऐसे स्पेशल ओकेजन पे ही पहनते थे. आज तो कोई स्पेशल ओकेजन है नहीं. सो व्हाट इज़ द मैटर नाउ. बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉलेम. ये तो ये है, इसके अलावा पूरी स्कूल इतनी स्ट्रेंज और सॉलेम क्यों है. स्ट्रेंज एंड सॉलेम, सॉलेम मीन्स सीरियस क्यों लग रही है इतनी. आज कुछ अलग ही लग रहा है फ्रांस को क्लास में आके, आज कुछ अलग ही हो रहा है. बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, इससे भी ज़्यादा इसके लिए कोई चीज़ सरप्राइजिंग लगी,
तो क्या थी वो? वॉज to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. मतलब सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग क्या लगा इसको कि जो बैक बेंचेस थे ना, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो खाली रहते थे कभी भी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, वो लोगों वहाँ पे विलेज पीपल बैठे हुए थे, वो भी शांति से, लाइक आवर सेल्स, मतलब हमारी तरह, हम बच्चों की तरह बैठे हुए थे वो सारे विलेज पीपल। उसमें कौन कौन थे विलेज पीपल में? कुछ नाम बताए। ओल्ड हाउसर है विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, ओल्ड हाउसर ने 3 कॉर्नर्ड हैट पहना हुआ है। द फॉर्मर मेयर, पहले का मेयर है। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, जो पहले पोस्ट मास्टर था। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, इसके अलावा बहुत सारे हैं विलेजर्स। पीछे जो कि खाली बेंच हुआ करती थी, आज भरे हुए, वो भी बच्चे नहीं बैठे हैं, विलेजर्स बैठे हैं। अरे बच्चों की क्लास में विलेजर्स क्या कर रहे हैं? ऐसा ये सोच रहा है। एवरीबडी लुक्ड सैड, सबके सब सैड दिखाई दे रहे हैं। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर। अब ओल्ड प्राइमर क्या होता है? तो प्राइमर इज़ अ बेसिक रीडर ऑफ एनी लैंग्वेज, मतलब इट्स एन एलिमेंट्री बुक, ABCD वाली। ओल्ड प्राइमर, ऊपर से ओल्ड है, मतलब हाउसर बूढ़ा हो चुका है, तो वो एक पुरानी बुक, एलिमेंट्री बुक लेके आया था। हो सकता है कि वो वही बुक हो जो उसने ओल्ड हाउसर ने बचपन में पढ़ी हो, बहुत पुरानी होती है। थम्ड एट द एजेस, ये एक्सप्रेशन में है, ये बुक पुरानी हो गई तो ऑब्वियसली कैसी दिखेगी? थम्ड एट द एजेस, ठीक है। दैट मीन्स वर्न और सॉइल्ड कॉज्ड बाय फ्रीक्वेंट हैंडलिंग। बार बार आपने इस बुक को पढ़ी होगी तो उसकी वजह से उसकी जो एजेस होंगी वो थम्ड हो गई होंगी, ठीक है। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और वो बुक उसने कहाँ खोल के रखी थी? अपनी नीज पर। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, जो उसके स्पेक्स थे, चश्मे, लाइंग अक्रॉस द पेजेस। उसने बुक अपने नीज पर रखी और बुक को ओपन रखा और उसके बुक के पेजेस पर स्पेक्टिकल, चश्मा रख दिया। बहुत ही सैड वो भी दिख रहा था।